So let's first what we will do. First we will recite these verses और ये verses recite करने के बाद we'll read through the translation purport and then few things I will share with you. So let's अच्छा आप अपने silence करके recite कर सकते हैं. अप्य अद्यनस्तं सुकृतेऽर्ति प्रभो जिहाससि स्वित्तसुहृदो अनुजीविनाम् येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितामहसाम्. So this is 37th verse, right? तो क्या कह रही है रानी कुंती? So, oh my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. Now, when all the kings are at enmity with us. So पर्वत थोड़ा सा लंबा है, बट ध्यान से पढ़िएगा. Then we will be able to understand them properly. Sorry. Yes. आदि The Pandavas are most fortunate because, with all good luck, they were entirely dependent on the mercy of the Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relationship with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent on Him. The material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. The false attempt to become independent of the strengthened laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge. The whole material world is moving on this false attempts of becoming independent of the laws of nature. Beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven, down to the present age, they are trying to overcome the laws of nature. They are trying not to approach distant planetary system by electronic mechanical power, but the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time dependent completely on the Lord. The Pandavas were the ideal executors of this standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Sri Krishna, but they were not idle mm, parasite of the Lord. They were all highly qualified both by personal character and by physical activities. Still, they always looked for the mercy of the Lord because they knew that every living being is dependent by the constitutional position. The perfection of life is therefore to become dependent on the will of the Lord instead of becoming falsely independent in the material world. Those who try to become falsely independent of the Lord are called anath or without any guardian, whereas those who are completely dependent on the will of the Lord are called sanath or those having someone to protect them. Therefore, we must try to be sanath so that we can always be protected from the unfavorable condition of material existence. By the deluding power of the external material nature, we forget that the material condition of life is the most undesirable perplexity. The Bhagavad Gita therefore directs us that after many, many births, one fortunate person becomes aware of the fact that Vasudev is all in all and that the best way of leading one's life is to surrender unto him completely. That is the sign of a Mahatma. All the members of the Pandavas family were Mahatmas in household life. Maharaj Yudhishthir was the head of these Mahatmas and Queen Kunti Devi was the mother. The lesson of the Bhagavad Gita and all the Puranas, specifically the Bhagavad Puran, are therefore inevitably connected with the history of the Pandavas Mahatmas. For them, separation from the Lord was just like the separation of a fish from water. Srimati Kunti Devi therefore felt such separation like a thunderbolt, and the whole prayer of the queen is to try to pursue the Lord to stay with them. After the battle of Kurukshetra, although the inimical kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only the Pandavas who were put into the condition of enmity, but all of us are always in such a condition
And the best way of living is to become completely dependent on the will of the Lord and thereby overcome all difficulties of material existence. Hmm. So, one thing we can mark in this is that the whole theme what we are going to discuss now is basically about Lord कृष्णा को भगवान को माता कुंती रोकने का प्रयास कर रही हैं because Krishna is now planning to leave and he's going back to Dwarka after the whole battle of Kurukshetra. So he's trying to persuade that Lord should stay with him. और उस persuasion में उस prayers में ये सारे तीन खास करके वर्सेज आएंगे जिसमें वो कुछ रीजंस बता रही हैं वाई यू शुड स्टे बैक हियर आपको रुकना क्यों चाहिए सो वन ऑफ द रीजंस व्हाट वी सी इन दिस वर्सेज कि यू हैव एग्जीक्यूटेड ऑल ड्यूटीज योरसेल्फ सो आर यू लिविंग अस टुडे इट्स अ क्वेश्चन आर यू लिविंग अस टुडे नस्तम सकृते ही था प्रभु सो आर यू गोइंग है ना क्यों क्यों जा रहे हो दो वी आर completely dependent on your mercy भगवान आप पे पूर्ण रूप से निर्भर हैं and have no one else to protect us now when all kings are at enmity with us इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं दो द पांडवास वर फुल्ली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स देखो युद्ध ध्यान से देखें अगर हम तो पांडवों ने लड़ा था भगवान तो खाली एक कह लो सलाहकार के रूप में थे दो कृष्ण पोटेंसी वॉज देयर यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ गंधर्व तत्र श्री विजयोर्मुक्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तो ऑब्वियसली योगेश्वर कृष्ण थे वहां पे बट फिर भी पांडवास वर आल्सो कैपेबल ऑफ फाइटिंग सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू मार्क दिस एंड लेट्स सी टू मोर थिंग्स व्हाट शी सेज उसके बाद हम इसको समराइज करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स फ्रॉम देम सो 38 केवयं नाम पाव्यं यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि नाम इवेशितुः. So, as the name and the fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if we do not look upon us, all our fame and activities, along with the Pandavas in Yadus, will end at once. Yes, bro, please read. Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandavas is due to Sri Krishna only. The Pandavas are undoubtedly well established in the name of fame and are guided by the great King Yudhishthir, who is morality personified, and the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Krishna, all of them are non entities, as much as the senses of the body are useless without the guidance of consciousness. No one should be proud of his prestige, power, and fame without being guided by the favor of the Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is the Lord Himself. We may therefore invent, by our advancement of material knowledge, all sort of counteracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions and in fiasco. However strong and stout the reactionary elements may be. Good. So, what Maharani Kunti is saying कि ये जो आज भी हमें जो ये ऐश्वर्य दिख रहा है ना ये हमारे शरीर से संबंधित है ये सब खत्म हो जाता है जबकि आत्मा निकल जाती है शरीर से उसी प्रकार से जैसे कि आप हम सब के ऊपर अपनी एक दृष्टि डालते हैं कृपा दृष्टि डालते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा ऐश्वर्य है ना और हमारी जो क्रियाएं हैं वो सब के सब एक क्षण में खत्म हो सकते हैं और ये ट्रुथ है क्योंकि भगवान की एक इच्छा थी और भगवान की नज़र थी पांडवों पे यदुओं पे इस कारण से उनकी पूरी प्रोटेक्शन थी इस पूरे के पूरे महाभारत और प्लस भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम के कई सारे प्रसंगों के अंदर Now this is the last verse of this section और वैसे 40th भी आएगा but 40th I thought कि we'll take it in a separate section next time and there we'll try to discuss more in detail on a very different theme कि how was Vedic life more prosperous than the modern life तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है सो विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम 39th में हम इसको एक जो यहाँ प्रार्थना है बेसिकली बिकमिंग टू मच dependent on Krishna. So why being dependent on Krishna is a very fortunate position. This is the very important theme जो कि यहाँ पे पब्लिश करेंगे यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्चुअली ब्रॉडकास्ट करनी है महारानी कुंती बता रही हैं कि दिस इज व्हाट इज द
ग्रेटनेस ऑफ बीइंग डिपेंडेंट अपॉन कृष्ण इज अ वेरी बिग थिंग। इसलिए अब कहती हैं आगे, नयम शोभिष्यते तत्र यथे दानिम गदाधर तत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित। O Gadadhar, Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet, and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. Hmm. There are certain particular marks on the feet of the Lord which distinguish the Lord from others. The marks of a flag, thunderbolt, an instrument to drive an elephant, umbrella, lotus, disc, etc., are on the bottom of the Lord's feet. These marks are impressed upon the soft dust of the land where the Lord traverses. The land of Hastinapur was thus marked while Lord Shri Krishna was there with the Pandavas, and the kingdom of the Pandavas thus flourished by such auspicious sign. Kunti Devi pointed out these distinguished features and was afraid of ill luck in the absence of the Lord. Yes. So to summarize the whole thing, so I just thought we can keep something today for discussion. So I tried something from the notebook LM. बहुत अच्छा ये टूल है, तो इसमें समराइज करने के लिए put a few things और gave a very good presentation on the whole aspect. The anchor of grace, basically finding the strength in the divine dependence. So it's very important to understand कि डिवाइन डिपेंडेंस क्यों जरूरी है हम सबके लिए। दो, हम सबको अपना प्रयास करना है, मेहनत करनी है, और अपना जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है उसको लगाना है भगवान की सेवा में भी और अपने दैनिक जीवन में भी। बट स्टिल वी नीड टू नो दैट बीइंग डिपेंडेंट on Krishna is not a miserable stage of life, but is a very jolly and is a very desired state of life. Example is like a fish, when it's in water, it's in the most pleasurable circumstances of life. लेकिन वही मछली अगर सोचे कि मैं पानी से इंडिपेंडेंट हो जाऊं, सो दैट्स द बेसिकली बिगन्स। सो नाउ दिस एंकर ऑफ ग्रेस, बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए कि हाउ टू पुट दैट एंकर इन आवर ओन लाइफ। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो मैं जो अभी मेंशन करूंगा आपको, दिस इज ऑल द समरी ऑफ व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ, एंड दिस कैन हेल्प अस टू break down the whole three purports of Prabhupada into very simple points, but yes, very deep points। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट, द मटेरियल डिजीज, ये भौतिक बीमारी। ये क्या है? अगर ये बीमारी को पकड़ लिया ना, तो इसका इलाज भी समझ में आएगा क्या है। एक भौतिक बीमारी खाली यही है, एक संसार के अंदर स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा, स्वतंत्रता, आज़ादी। देखिए, दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आज़ादी क्या है। एक फुटबॉल भी आज़ाद है, और एक पतंग को जब उड़ाते हैं हवा में वो भी आज़ाद है। दोनों हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की आज़ादी में फ़र्क बहुत है। फुटबॉल थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, टिल द टाइम टिल द टाइम इट्स अगेन किक्ड। उसको फिर से किक किया जाता है फुटबॉल को, एट दैट टाइम अगेन द डायरेक्शन चेंजेस, फिर अगेन अनदर किक, अनदर डायरेक्शन चेंजेस, देन अनदर किक, देन अनदर वन। सो वो जो मोमेंट्री कुछ समय के लिए वो फ्लाई जो हवा में कर रहा है ना फुटबॉल, उसके पीछे जो इम्पैक्ट है, थ्रस्ट है, फोर्स है, दैट्स कमिंग फ्रॉम सम पीपल दुनिया के अंदर। सेम वो मैटर नेचर ऐसी होती है, बिकॉज ऑफ द काल शक्ति, भगवान की जो काल शक्ति है, उसके कारण समय समय पे कुछ ऐसे पुश अपने लाइफ में आ रहे होते हैं, कभी इधर से कभी उधर से। और खास करके हैप्पीनेस को लेकर डिफाइन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थनाओं में भगवान नरसिंह देव को। और वो कहते हैं, कुत्राशीष श्रुति सुख मृग तृष्णि रूपा तेदम कलेवरम अशेष भजाम विरोह यद्यपीति तद्वत् न विद्वान। बहुत सुंदर बात में बोलते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट वर्स, फर्स्ट लाइन, इट सेज कुत्र आशीष श्रुति सुखा मृगतृष्ण निरूपा। वो कह रहे हैं कहाँ पे सुख है संसार में, क्योंकि सुख क्या है, सुनने में है, सुनने में अच्छा लगता है कि ये सुख है। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते हैं द एंटिसिपेशन ऑफ द हैप्पीनेस इज मच हैप्पियर देन द रियल हैप्पीनेस इटसेल्फ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, बट व्हेन वी रियली आर एट दैट पोजीशन ना, देन वी थिंक ओ इट इज नॉट सो, है ना। अभी पीछे आपने अगर इंस्टाग्राम देखते हो तो संजय के चैनल पे तो माता जी वो बनाती हैं जस्ट 1 मिनट वाला, जस्ट अ मिनट ऐसे कुछ एक ऑडियो वीडियो आता है, तो जस्ट अ मिनट।
तो उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं 1 मिनट के अंदर, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे ये होगा। तो एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान आया, उसने पूछा था माता जी ने, इफ यू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ टेम्पल, व्हाट वुड द फर्स्ट थिंग यू डू। तो जब मैंने वो क्वेश्चन अपने ऊपर लेके देखा और भक्त का आंसर सुना, आई वाज सो सरप्राइज। लोग दूर से रह के देखते हैं कि कितना आसान है चीजों को करना, इट्स सो सिंपल, बट व्हेन यू लिटरली डू इट, देन यू नो इट कि कितना टफ है। एनीथिंग यू टेक इट, कॉलेज लाइफ की बात करें, व्हेन द पीपल वर नॉट प्लेस्ड, तो प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, 15 LPA, 20 LPA, 25 LPA, 25 लाख का पैकेज है आपका, 30 लाख का पैकेज है, सो एंड सो। इवन अगर टाइम हमें याद है कि अमेजन बहुत बड़ी, आज भी है बड़ी कंपनी, बट अमेजन उसमें बहुत हाई पैकेज दिया करती है, दैट इज लाइक 2010। तो बच्चों में बहुत फैसिनेशन होता था कि कौन उसमें ब्रेक थ्रू देगा। कुछ लोगों का हुआ भी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि इतना हाई पैकेज है, इतना कुछ है, फिर नाम भी होता है, घर में भी काफी नाम होता है, सब कुछ। बट जिस प्रकार का काम उस कंपनी ने कराया शुरुआत में, बिकॉज इट स्टार्टअप एट दैट टाइम, लोगों के हेल्थ ब्रेकडाउन्स, स्ट्रेस, मेंटल ब्रेकडाउन्स, और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ लोगों को। मतलब उन्होंने जो पैसे अर्न किए ना, मोस्ट ऑफ द वेल्थ वेंट इनटू ट्रीटिंग देम, उनका इलाज करने में चला गया। सो इतनी मेहनत, इतना कुछ, और अंत में क्या लगता है कि हमें बहुत सुख मिल जाएगा उस वस्तु से। बट नो, दैट्स नॉट द रियल इंडिपेंडेंस। नाउ द रियल इंडिपेंडेंस इज व्हाट, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ काइट। नाउ काइट इज आल्सो फ्लाइंग इन द एयर, लेकिन काइट की एक डोर है जिसको नीचे कोई पकड़ के रखा हुआ है, एंड व्हेन दैट पर्सन इज होल्डिंग दैट रोप ना, उस रस्सी को पकड़ के बैठा है, तो फ्लाइट जितना भी चाहे उतना उड़ सकती है विदाउट एनी डिस्ट्रेस। बट यस, एक बार वो अगर हाथ से छूट जाए या कट जाए, जैसे पतंग कट जाती है, नाउ दैट इंडिपेंडेंस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगी। इसीलिए इस दुनिया में ना लोग इंडिपेंडेंस ढूंढते हैं, आज़ादी ढूंढते हैं, बहुत चीज़ों से आज़ादी ढूंढते हैं, सोशल नॉर्म से आज़ादी ढूंढते हैं, परिवार से आज़ादी ढूंढते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, लोगों के साथ साथ में चलना मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें। इफ आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस सिंगल स्लाइड, इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट द पॉइंट इज, द होल बेटर वर्ल्ड is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature. And it's not possible. It's very difficult. Let's see a very beautiful example. This example of Ravana. अब देखिए क्या था रावण के साथ। ही डिडंट वांटेड टू फॉलो द लॉज। उसको क्या लगता था कि मेरे पास इतनी योगिक शक्ति है, इवन अनक्वालिफाइड व्यक्ति को भी मैं स्वर्ग तक भेजने के लिए सक्षम हूँ, मैं भेज सकता हूँ उसको। इसलिए उसने क्या किया था, ऐसी सीढ़ी बना दी स्वर्ग तक। नाउ एनी अनक्वालिफाइड पर्सन कैन एंटर हियर। पहले के समय क्या था, इसमें एंटर इतना आसानी से नहीं हो सकते थे। अगर आपने नाम सुना होगा त्रिशंकु का, ही वॉज वन ऑफ द सेजेस, और इसको विश्वामित्र ने अपने योग बल से स्वर्ग की ओर फोर्स करना शुरू किया था। और जब फोर्स किया था तो देन ही वॉज गोइंग गोइंग गोइंग, और जाते जाते जस्ट वो पहुंचने वाला था स्वर्ग के, तब तक इंद्र ने ऊपर से फोर्स किया। तो ऊपर से नीचे की एक फोर्स जो इंद्र डाल रहा है, और नीचे से ऊपर की फोर्स जो कि विश्वामित्र अपने ब्रह्म तेज, उन्होंने तपस्या की थी इतने समय से। अब त्रिशंकु बेचारे बीच में लटक गया था। तो ऐसे आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स बहुत बार होते थे पास्ट में, जिससे कि लोग हायर प्लैनेट्स को प्राप्त कर सकें। प्रभुपाद अपने पर्पट के अंदर यही एग्जाम्पल देते हैं आज मॉडर्न टाइम में भी, कि द करंट इज ब्रॉट अप्रोचिंग द डिस्टेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स by some electronic mechanical power, and that's a big success आज की डेट में भी। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम जस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग। ओके, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स ग्लोरीज कि चंद्रयान को भेजने की, एंड लैंडिंग एट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द मून। बट अगेन प्रभात बहुत बेसिक्स पे क्वेश्चन करते हैं, एंड ही सेज कि व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट। उतने एक्सप्लोरेशन से, इतने से लगा करके, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर यू गोइंग टू गेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशंस हुए, नो डाउट ऐसा नहीं कि सारे बेकार हुए। वी हैव जो सैटेलाइट्स हैं हमारी, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं हमारे, सैटेलाइट्स है, नेटवर्किंग, सो मेनी थिंग्स, कितनी चीज़ डेवलप की है साइंस ने, नो डाउट। बट पॉइंट इज अगेन, प्रभात हमेशा एक क्रक्स पे हिट करते थे, कैन ऑल दिस डिस्कवरीज would make you free of the four miseries of life, that's birth, old age, disease, and death. No, it's not so. Even you take anything, let's suppose death, impossible. You take disease. Now, people can say we have treated such and such disease, but once you treat any disease, there are 10 more diseases born. So, disease as a whole doesn't get sent.
आप समझ इस बात को? जो एक बीमारी है अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं खत्म होती, आप एक बीमारी खत्म करते हो 10 और बीमारियां आ जाती हैं व्यक्ति को। सो डिजीज एज अ होल स्टेज, एंड देन ऑब्वियसली द ओल्ड एज इज देयर, नोबडी वांट्स इट। और प्रभात एक लेक्चर में बहुत एक हिंदी कन्वर्सेशन था प्रभुपाद के एक स्थान पे, और बहुत प्रेम से प्रभुपाद एक व्यक्ति को समझा रहे हिंदी में कि धीरे से बुढ़ापा हमारे जीवन में आएगा और हम बूढ़ा करके चला जाएगा। सो इट विल नेवर बी नोन, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब बूढ़े हो गए, कब वो समय आया कि हम बूढ़े हो गए। पॉइंट इज, प्रभुपाद कहते थे कि दिस इज द प्रॉब्लम, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ओके, और मैटर को जितना भी मैनिपुलेट कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग। बट कहीं ना कहीं ये क्वेस्ट होती है, ये अप्रोच होती है कि लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन अ मिडल वे। So despite such achievements, now you see, the underlying desire is what? To overcome the laws of nature. But what happens? जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी ये सब कुछ हैं, ये सब कुछ समय के बाद हवा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दिस फैक्ट। सो द स्टेट ऑफ अनाथ, जो प्रभात यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे एक बोट है ना, एक समुद्र में आ गई है ना, उसका कोई भी निकाल नहीं सकता, उसको कोई भी बाहर लेके जा नहीं सकता उसको। एंड जस्ट इमेजिन कि आप कहीं एक ऐसे ओशन में जहाँ से आपको ना लेफ्ट पता ना राइट पता, नीदर वे यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। इसीलिए ये बात बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बोली है, खासकर के आदि शंकराचार्य ने, है ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार है बहुदुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। इट इज टू डिफिकल्ट, इसको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। यह संसार है बहुदुस्तार है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर दिस। तो दोज हु ट्राई टू बिकम फॉल्सली इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड, उनको क्या कहा गया? अनाथ और विदाउट एनी गार्जियन। दिस इज a condition of undesirable perplexity. And by the deluding power of metal nature, we forget how vulnerable this state is. And we are left unprotected from the unfavorable conditions of material existence. So we are left unprotected. ये है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स प्रपात भी दिए करते थे, बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल्स। Even a street dog examples. If a street dog if doesn't has a master, so what happens? One day the municipality car comes and just picks it and takes it away. But a dog which is a pet dog, इसके गले में कॉलर लगा हुआ है, so it's protected because there is a sign कि उसका कोई मालिक है। इवन हर चीज़ के साथ, इवन बच्चे होते हैं या कोई अनप्रोटेक्टेड चीज़ है, कोई ना कोई उसका शोषण कर लेता है, बट देयर इज somebody who protects if that concept of सनात is there। और यही बात यहाँ पे प्रपात पर पट में डाल रहे हैं। नाउ माता कुंती यहाँ क्या कहना चाह रही हैं? व्हाट शी गोइंग टू से? देखो अब क्या है, ये लोग युद्ध जीत चुके हैं, महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी समस्या खत्म हो गई है। अभी कई ऐसे योद्धा थे जो एक्चुअली में युद्ध में नहीं आए थे, और वो भी पांडवों से एनिमिकल थे, अगेंस्ट थे पांडवों से बहुत। जैसे कि एक एग्जाम्पल फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर में आता है। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द सन ऑफ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को मारा नहीं था, छोड़ दिया था ब्राह्मण पुत्र मान करके। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया था? एज यू ऑल नो द स्टोरी। अश्वत्थामा ने गलती से 5 पुत्र मार दिए थे पांडवों के, और उसका जब गला काट करके ले गए थे युधिष्ठिर दुर्योधन को दिखाना, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि सोते हुए बच्चों को उसने मारा था। दुश्मनी तो वहां से थी अश्वत्थामा से, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को माफ कर दिया। फिर भी अश्वत्थामा नहीं मारा। अश्वत्थामा ने फिर क्या किया? ब्रह्मास्त्र चलाया। और किस पे चलाया? उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के ऊपर। भगवान ने वहां भी रक्षा की। इसके बाद पांडवों पे स्वयं चलाया। उसके बाद पांडवों ने उसको काउंटर किया। कहने का मतलब, आप सोचो, ये बात यहाँ नहीं खत्म हुई कि आपने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया सो यू आर प्रोटेक्टेड। नो, स्टिल द एनिमीज वर देयर। इसीलिए महारानी कुंती कह रही हैं कि ये जो युद्ध है ये हो चुका है, एनिमीज आर नॉट गॉन। उनके सन्स, ग्रैंड सन्स, सब बदले की भावना से भी जीवित हैं, और वो बदला लेना चाहते हैं हमसे, वो हमें मारना चाहते हैं कहीं ना कहीं। वाई शी इज पुटिंग दिस पॉइंट? ऐसा नहीं था, ध्यान सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी की पॉइंट। अवर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज वेरी रीजनेबल। हमारी जो डिपेंडेंस है ना कृष्णा के ऊपर, बहुत रीजनेबल है। वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा वेरी ब्लाइंडली, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैविंग अ ब्लाइंड फेथ एंड रीजनेबल फेथ। ये बहुत अलग चीजें होती हैं। ब्लाइंड फेथ कैसे होता है? अंधविश्वास जिसको बोलते हैं समाज के अंदर, कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, जैसे कि मैं छत पे जाता हूँ, छत पे कूद जाऊंगा छत से ऊपर प्रहलाद महाराज की तरह, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे।
मैं टेस्ट करूंगा भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं कि नहीं। सो आई विल डू समथिंग लाइक सम क्रेजी थिंग लाइक दिस। तो आपके साथ क्या होगा? आपको चोट लगेगी, आपका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, है कि नहीं? बट रीजनेबल फेथ क्या होता है? रीजनेबल फेथ में आप पूरी साइंस को समझते हो। यू ऑल्सो नो देर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं गिरूंगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट करेगी मेरे ऊपर। दो कृष्णा भी एक्ट करेंगे मेरे साथ, बट कृष्णा क्यों लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ेंगे? आप ध्यान से समझो, वाई कृष्णा विल डिफाई और ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी whom कृष्णा हिमसेल्फ हैज मेड इट। दो कृष्णा हिमसेल्फ फॉलोज इट। जैसे जब भगवान के पीछे कालीवन था, और कालीवन के बाद वाली घटना थी जब जरासंध की सेना पीछे थी, तो भगवान, आपको याद होगा, जब ये जूनागढ़ के पास स्थान पड़ता है गुजरात में, वहां से कितने किलोमीटर से ऊपर से जंप लगाया था भगवान ने, एंड उस फॉरेस्ट के अंदर आग लगा दी थी जरासंध के सैनिकों ने। कृष्णा को लगता है जंगल में मार दिया हमने। तो कृष्णा बलराम क्या हुए थे? दे जम्प्ड फ्रॉम द हिल। अब देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर वो जंप किए हिल से ना, सो देयर कुड हैव बीन द चांसेस कि वो अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई कर सकते थे। दे कुड हैव फ्लाइड इन द एयर, राइट? भगवान से बनाए नहीं, लेकिन भगवान उसको फॉलो किया, दे वेंट डाउन। बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, दे वेंट डाउन। कृष्णा फॉलोज एवरी लॉ विच ही हिमसेल्फ हैज मेड। दैट्स द जेंटलमैन नेचर ऑफ कृष्णा। जेंटलमैन है ना, खुद बनाया लॉ खुद फॉलो करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, सारे लॉज ये लोग बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन सारे लॉज वो भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं वो लॉज तोड़ते हैं। सिंपली कृष्णा मेक्स एवरी लॉ एंड ही वांट्स अस आल्सो टू फॉलो एवरी लॉ। भगवान चाहते हैं कि हम भी क्या करें? लॉस को फॉलो करें। ये चीज कहलाती है एक प्रकार की रीजनेबल फेथ, इसमें कि आप एक सेंसिबिलिटी के साथ, पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ ये जानते हैं कि कुछ चीजें मेरे से नहीं हो सकती और कुछ चीजें कृष्ण ही करेंगे। इसीलिए इस लाइफ के अंदर दो चीजें होती हैं। देर इज वन थिंग कॉल्ड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड देर इज सर्टेन थिंग कॉल्ड एरिया ऑफ कंसर्न। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? आपकी कितनी चलती है किसी चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपने घर पे चल सकती है, आपकी आपके रिलेटिव्स पे चल सकती है, आपके आपके फ्रेंड्स पे थोड़ी थोड़ी चल सकती है। लेकिन अब मैं कहूँ कि मैं, मेरी इस देश के ऊपर कुछ कानून चलने चाहिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद अस, राइट? दिस इज एरिया ऑफ मे बी कंसर्न फॉर अस, चिंता का विषय हो सकता है हमारा, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इसको। इसी प्रकार से इस लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, इसको लेके हम कंसर्न या चिंतित तो होते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं उसको। इन्फ्लुएंस के बाहर होती है। अगर ये चीज किसी ने सीख लिया ना, जान लिया कि क्या चीज मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्या चीज मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ, और क्या चीज के ऊपर कंसर्न होना चाहिए, क्या चीज के ऊपर कंसर्न नहीं होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। सारी समस्याएं देखिएगा सुलझ जाएंगी, और बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको बैठना मंथन करना। जर्नलिंग हेल्प्स। अगर आप लिखते हो कोई चीज, एंड इफ यू राइट थिंग्स एंड मेडिटेट अपॉन इट एंड ट्राई टू, देयर आर टू थ्री वेज ऑफ डूइंग इट। एक होता है सिंहावलोकनम, एक होता है भृंगावलोकनम, जैसे एक बर्ड आई व्यू होता है, एक लाइन आई व्यू होता है। लाइन आगे बढ़ता है, पीछे कुछ अपने कदमों को देखता है। रिट्रोस्पेक्टिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग, ओवरऑल व्यू, ऐसे अलग अलग एंगल्स होते हैं चीज़ों को देखने के। लाइफ को भी अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें इस प्रकार से, सो वी फाइंड दैट डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा हैज टू बी देयर in the life of a devotee, because we can't control everything of our life. Most of the things of life is dependent upon whom? Krishna. इसलिए माता कुंती कह रही हैं, अभी भी हमारे दुश्मन जिंदा हैं, तो प्लीज, रीजनेबल फेथ है, प्लीज आप मत जाइए, प्लीज डोंट गो, आप मत जाइए। एंड देयर इज अ क्राई, आर यू लिविंग अस टुडे? आप छोड़ रहे हैं, आप कैसे छोड़ सकते हैं हमें आप? ओ माय लॉर्ड, यू हैव एग्जीक्यूटेड ऑल ड्यूटीज योरसेल्फ एंड आर यू लिविंग अस टुडे? आपने खुद किया है, मेहनत की है भगवान ने इन ड्यूटीज को पूरा करने में। भगवान ने चमत्कार नहीं दिखाया था, भगवान ने 18 दिनों तक अर्जुन के रथ को हाँका था, चलाया था। कृष्ण अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि सो मच हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए फॉर अस ना, इवन इन द लाइन ऑफ भक्ति और द ड्यूटीज व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, दोनों ही स्थानों पे हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है। एक सुंदर सा सुभाषितानी, एक बहुत सुंदर सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने मेंशन की हैं, तो प्रभुपाद इसमें से एक जरूर कोट करते थे।
कहते हैं उद्यमेन ही कार्याणि न सिद्ध्यन्ति व मनोरथ है, कि कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। मनोरथ है मतलब होता है ऐसे हम सोचें बैठ करके कि मेरे खाली सोचने से कोई चीज हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। उदाहरण देते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर शेर सोता रहेगा जंगल में और ये सोचेगा, देखो शेर है राजा, लेकिन वो सोचे कि मैं सोता रहूंगा और जो इतने हिरण है जंगल के ना, ऑटोमेटिकली आएंगे और मेरे मुंह में प्रवेश कर जाएंगे, और मेरी जो हंगर है उसको क्या करेंगे, वो सबड्यू कर देंगे। ऐसा होगा? नहीं है ना। इवन शेर तक को मेहनत करनी पड़ती है बाहर निकल करके जंगल में। सो सेम थिंग, डिपेंडेंस ऑन कृष्णा मीन्स फर्स्ट वी हैव टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य पूरी तरह से कर लेंगे ना, तब रियली हम एक जगह जाकर रियलाइज करेंगे लाइफ में कि अब तो मेरे को कृष्ण पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा एक पॉइंट पे। और ये रिलेशन भगवान देते हैं, है ना। साधकों के जीवन में बताता हूँ मैं आपको। चलो अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे हम सब कॉमन है एक्चुअली। वक्त की बात नहीं करेंगे। हम सब साधक हैं, हम सब साधना कर रहे हैं, और साधना भक्ति में वी नो द स्टेजेस, कैसे वो जो कैसे जाती है भक्ति, है कि नहीं। पहली स्टेज है आदो श्रद्धा, अरे श्रद्धा से आते हैं आदो श्रद्धा, तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, हाँ, ततो निवृत्त अर्थ वृत्ति स्यात्, अननिवृत्ति, ये अननिवृत्ति होती है। ये स्टेज सबसे लंबी एक्सटेंडिंग और पेशेंस चाहिए होता है स्टेज पे। अनर्थ, हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑल द सिक्स अनर्थस? आई थिंक काफी पुराने भक्त हैं, सारे जानते होंगे। इफ यू कैन रेट राइट ऑन चैट कुछ अनर्थ जो आपको पता है, यू कैन नो इट ऑल सिक्स, कोई अगर जानता हो, या दो चार तीन जो भी, सो जस्ट कीप टाइपिंग, सो दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि शायद आप सबको पता होंगे। सुना बहुत बार होगा सबने। दैट बिग एनिमीज ऑफ एनीबॉडी प्रोग्रेसिंग। ओके लेट मी सी द चैट। हाँ, ना 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 ना, अनर्थ, अनर्थ 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 ठीक है। नहीं, ऊपर लिखा कीजिए एक मिनट। हाँ, जगन्नाथ मोहन को, ठीक है, गुड। क्रोध, गुड। प्रणयपुर, राइट, लो, मोह, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओके, मोस्ट ऑफ यू नो इट। परफेक्ट परफेक्ट। सो दिस इज सिक्स एनिमीज। रघुनाथ दास गोस्वामी मना शिक्षा, उनकी लिखी हुई अपनी एक पूरी रिफ्लेक्शंस है भजन के ऊपर। तो उसमें उन्होंने चौथे वर्ष के अंदर ये बात मेंशन की है कि जब हम भक्ति के पथ पे चलते हैं ना, भक्ति का पथ एक रॉयल पाथ है, रॉयल। लेकिन उसमें भी छह लुटेरे बैठे हुए हैं। छह लुटेरे, छह लुटेरे क्या करेंगे ना, बीच बीच में आपको लूट लेंगे जाके, और आपका जब धन खत्म हो जाएगा आप आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। कुछ देर रुकना पड़ेगा आपको वहां पे। फिर क्या होगा कुछ टाइम के बाद, जब थोड़ा और धन इकट्ठा हो जाएगा, फिर थोड़ा देर ट्रैवल करेंगे आप, फिर छह लुटेरे आते हैं, और बहुत ही भयानक है लुटेरे। क्या क्या है इसमें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो व्हाट इट मीन्स, काम इज लस्ट, क्रोध इज एंगर, लोभ इज ग्रीड, काम क्रोध लोभ, मोह इज इल्यूशन, मोह, मद इज मैडनेस, एंड मात्सर्य दैट्स एनवी। अब ये देखिए, पहली चीज तो मैं कहूंगा आप सबसे, बहुत समय तक ना भक्त इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लाइफ के अंदर, बहुत समय तक दे जस्ट जस्टिफाई इट। वो कहते हैं नहीं, कैसे आप कह रहे हैं, मेरे अंदर एनवी है, मैं तो एकदम सही बात बोल रहा हूँ, दैट पर्सन इज बैड, व्यक्ति है ही बदमाश, मैं जानता हूँ उसको अच्छे से, ये मेरा द्वेष थोड़ी बोल रहे हैं, ये फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन ट्रुथ्स एंड आई हैव प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स विथ मी। इसके आधार पे कह रहा हूँ कि दिस पर्सन इज बैड, सो एंड सो एंड सो एंड सो। अब उसको कभी बताओ, नो नो प्रभु, दिस इज योर एनवी टुवर्ड्स हिम, हाउ कैन यू से लाइक दैट। तो कहते हैं हाउ कैन यू से लाइक दैट, मैं एनवियस हूँ, नेवर एवर, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर दो इसमें से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, एक होता है इल्यूशन, मोह, और एक होता है मात्सर्यता। मात मद, मद मीन्स इट्स मैडनेस। मैडनेस किसी भौतिक वस्तु के प्रति हो सकता है। काम आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग, लोभ भी,
अगर थोड़ा सा सात्विक होंगे तो समझ जाएंगे कि आई एम अननेसेसरली गेटिंग रेडी ऑन दिस काम। क्रोध तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं, सबसे आसान से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं क्रोध है, दैट्स ऑल। तो काम, क्रोध और लोभ डिफिकल्ट नहीं है, मात्सर्य भी पहचान सकते हैं। बट मद और मोह ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग इट। पहले आइडेंटिफाई भी करने आना चाहिए लाइफ में कि ये सब समस्या है भक्ति की। कई लोगों को समस्या नहीं लगती है भक्ति को, भी लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ डिजीज ऑफ द लाइफ। You don't know what difference is. There is a thing called part of life and there is a thing called disease of life. So it's a disease of life, it's a problem of life. आपकी भक्ति को धीमे कर देगा ये। आप करना भी चाहोगे भक्ति, अब नहीं कर पाओगे। आप कितना भी इंटेंस चैंटिंग करना चाहो, इंटेंसली नहीं कर पाओगे। योर माइंड विल बी totally absorbed in those things, even you try your hard to pull out your mind from it। अपने मन को निकालने की कोशिश करोगे ना, आप सोचोगे कि मैं इस थॉट से इसको हटाना चाहूंगा, ये थॉट क्यों मेरे को परेशान कर रहा है। इम्पॉसिबल। इतना आसान नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। आई न्यू वन स्टूडेंट, उसको 2 से 4 महीने लगे खाली ये फाइनलाइज करने के लिए कि मुझे 25 लाख का पैकेज मिल रहा है, आई शुड गो टू रशिया, साइबेरिया, टू वर्क देयर। या 5 लाख के पैकेज में मैं इंडिया में रह लूँ शांति से भक्तों के साथ। एंड 3 months ही वॉज गोइंग बैक एंड फोर्थ। क्या डिसीजन लूँ। अब उसको ये बात कभी भी डायरेक्ट बोल देना, प्रभु दैट इज योर लोभ, नथिंग मोर देन दैट, तो ओहो इट वुड बी टू हिटिंग फॉर हिम। उसके लिए बहुत वो होता है कि आप कैसे कह रहे हो कि ये लोभ है। बट वी हैव टू गिव दैट टाइम। तो 3 से 4 महीने के बाद उसको खुद समझ में आया, जो डिसीजन का बेसिस है मेरा, दैट्स नॉट एनी कृष्णा कॉन्शियस बेसिस, वो डिसीजन खाली पैसा है। अब इसके हजार जस्टिफिकेशन हो सकते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। आई ट्रूली एग्री विद इट। इसीलिए इन बातों को ना हर एक सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए लाइफ में। जस्ट रिफ्लेक्ट एंड सी कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, एक पार्ट आपको बहुत हो गया, बहुत अच्छा किया आपने। अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। प्लीज बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा, भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट रहें। बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम वेयर वी कैन रियली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। आप समझ रहे हैं आप सब बात, ये टाइम है शेल्टर लेने का, प्लीज टेक इट। ये टाइम है। हम लोग कई बार सुने चैंटिंग ना, वी शुड क्राई लाइक अ बेबी, लाइक अ चाइल्ड, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा। बट वी नेवर नो व्हाट इज दिस क्राइंग ऑल अबाउट। कहीं बेबी को देखोगे तो समझ में आएगा बेबी कैसे रोता है ना। वो एकदम हेल्पलेस होता है, इट्स लाइक रियली हेल्पलेस कि नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट माय मदर कैन सेव मी और माय फादर कैन सेव मी। सिमिलरली हम भी एक समय रियलाइज करते हैं कि दो आई कैन ट्राई सो मच एंड सो हार्ड वर्क आई कैन ट्राई, बट अल्टीमेटली इट्स डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। भगवान ही बचाएंगे अपने को, है कि नहीं। उदाहरण देते हैं, यहाँ पे मणि कुंती देती हैं एक आत्मा और शरीर का, है कि नहीं। एक बार शरीर से आत्मा चली जाए, इसी प्रकार से अगर पांडवों के जीवन से भगवान चले जाएं, तो सारा का सारा ऐश्वर्य जो अभी हमने जीता है और जो हम लोग जीत करके आए हैं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता। तो ये एक सेकंड रीजनेबल फैक्ट माता कुंती बोल रही हैं कि भगवान इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? बिकॉज योर प्रेजेंस इज मेकिंग इट व्हाट, लाइफ, आपको लाइफ हो देती है। इसीलिए बोलते हैं भक्ति क्रियहीना, भक्ति के बिना जो ज्ञान होता है, कर्म होता है ना, वो सुंदर एक वर्ड्स है, जस्ट फॉरगेटिंग इट, मंडनम लोक रंजनम, इस तरह से एंड होता है वो वर्ड्स। उसमें बोलते हैं प्राण देह, उसके अंदर प्राण नहीं होता, उस देह के अंदर, शरीर के अंदर। और मंडनम लोक रंजनम, लोगों के आनंद के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति गुजर जाता है, सो बड़े पॉम्प एंड शो के साथ उसकी बॉडी को लेके जाते हैं शमशान घाट, खूब माले सजा होगा, खूब बैंड बाजे बज रहे होंगे, बट इट्स ऑफ नो यूज, द पर्सन हैज डाइड, इट्स अ लंप ऑफ मैटर ओनली नाउ। सिमिलरली पांडवों का जितना भी ऐश्वर्य था, सारा का सारा ऐश्वर्य एकमात्र कारण से था, बिकॉज कृष्णा वॉज ऑलवेज विद देम। उसका एग्जाम्पल ही देती है माता कुंती। लेट्स सी व्हाट शी सेज। जैसे वो कहती हैं, ओ गदाधर, बस कृष्णा गदा को हाथ में धारण करते हैं, अवर किंगडम इज नाउ बीइंग मार्क्ड बाय द इंप्रेशंस ऑफ योर फीट। हमारा जो पूरा का पूरा राज्य है ना, आपके चरण कमलों से एकदम वो छाप पड़ी हुई है भगवान की। एंड देयरफॉर इट विल सो ब्यूटीफुल, बट व्हेन यू लीव इट विल नो लॉन्गर बी सो। द लॉर्ड्स फीट, भगवान के चरणों पे बहुत निशान है, आपको अगर पता हो। सो इट इज लाइक 19 साइंस, बट कृष्ण हैज वन, 11 एंड 8, इस तरह से आता है।
2 फीट के ऊपर भगवान के निशान है। एंड उसके मेजर आते हैं फ्लैग, थंडरबोल्ट, लोटस, डिस्क। एक्चुअली ये एक एक एलिमेंट ना, एक भगवान के चरणों पे जब चिंतन करते हैं ना, ध्यान करते हैं ना, तो प्रार्थनाएं आती हैं ऐसी। आई थिंक मैंने तो एक क्लास में बताया भी था, थर्ड कैंटो में आती हैं। इसमें कि एक एक एलिमेंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, वो कोई ना कोई रिलेशन में होता है हमारी भक्ति के भी। फॉर एग्जाम्पल थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या होता है? वज्र होता है जो इंद्र के पास होता है ना। वो पहाड़ों पे मारते हैं, और जब पहाड़ों पे मारते हैं तो वो उसका ब्रेक होता है, टूटते हैं पहाड़, एंड दे बिकम पेबल्स, स्मॉल स्मॉल, और सॉइल्स बन जाती है उसकी। इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं। तो सेम चीज थंडरबोल्ट का एग्जाम्पल एक साधक के जीवन में बताते हैं कि जो भगवान है और भगवान का नाम है या भगवान की कथा है, इट एक्ट्स लाइक अ थंडर बोल्ट ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग बींग, स्पेशली ह्यूमंस। होता क्या है कि जितने भी पाप रूपी एक पहाड़ हम सबके ऊपर बना हुआ है ना, वो सब खत्म हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। थंडर बोल्ट एग्जाम्पल। उसी प्रकार से डिस्क है, लोटस, फ्लैग, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है थर्ड कैंटो के अंदर। तो these marks were impressed upon the land of Hastinapur, causing the kingdom to flourish. And Kunti fears the ill luck that will follow his absence. Now, this is the last section, a paradigm shift. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना पैराडाइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो इट, प्लीज राइट इट डाउन एंड प्लीज नोट इट एंड प्लीज मेक इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक अंडरस्टैंडिंग। ये पैराडाइम होता है देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। और जब ये शिफ्ट होता है ना लाइफ में, तभी आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालना बहुत कठिन है। इवन आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है बहुत बड़ा। ही यूज्ड टू से, यू कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम एट द लेवल व्हेन इट वेयर इट इज क्रिएटेड। जिस लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है ना, उस लेवल से उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। वेरी सिंपल एग्जांपल। आप अगर लखनऊ का भी कोई गया होगा, लखनऊ में एक स्थान पड़ता है भूल भुलैया। उसमें क्या होता है कि जब आप एंटर कर जाते हो, तो उसका एग्जिट निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है उस सीन, उसके ऊपर बहुत सारी दीवारें होंगी, जब आप जा रहे होगे ना, दीवार दीवार दीवार, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कई टर्न्स पे आप कंफ्यूज जाओगे कैसे बाहर निकलना है। नाउ दिस प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व एट द लेवल वेयर यू आर। 2 डायमेंशनल स्पेस पे, 2 डायमेंशनल लेवल पे आप लेफ्ट राइट करके कभी प्रॉब्लम को निकाल नहीं पाओगे। आप उसमें कई लोग खो भी जाते हैं, उनको ढूंढ भी नहीं पाते कई बार। तो कई रास्ते तो बंद कर दिए गए थे भूल भुलैया के बहुत समय के बाद। बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए, उसको सिंपल कर दिया गया था। लेकिन जो पहले बनाया था बहुत कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, ये सब किया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, यू हैव टू हैव द टॉप व्यू ऑफ द होल पिक्चर। उसका जब टॉप व्यू लेके चलेंगे ना, ऊपर से जो देखेंगे नीचे उस चीज को, तो आपको डायरेक्शन समझ में आएगा, लेफ्ट राइट कैसे जाना है। इसी और गाड़ी जैसे चलाते हैं, वो सिंपल है। मतलब गाड़ी चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और जब लेफ्ट राइट करते हो अपना, सो यू डोंट नो वेयर टू टर्न, वेयर नॉट टू टर्न, वेयर इज योर वे आउट। बट व्हेन वी टेक द हेल्प ऑफ गूगल मैप, सो गूगल मैप क्या देता है आपको? ऊपर से व्यू देता है कि नहीं? ऊपर से नीचे व्यू दे रहा है आपको, एंड इट्स ट्राइंग टू शो यू कैसे जाना है, किधर जाना है। सो व्हेन यू हैव द टॉप व्यू of the course of traveling where you are going now, it is easy for you to travel. The point is, all the problems of life are never solved at the level at which it is created. You have to find something higher for it. यही सारी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े जगहों पे इसको पैराडाइम शिफ्टिंग बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो आपको यही करवाते हैं, भाई अपने पैराडाइम को बदलो, देखने का जरिया बदलो। है ना, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने भी सुना था, सो ऐसे है कि परिस्थिति नहीं बदलेगी, अपनी मनोस्थिति को बदलो। परिस्थिति वही रहती है, अपने को मनोस्थिति बदलनी होती है अपने को। वी हैव टू चेंज द वे वी सी द थिंग्स। नाउ यहाँ पे जो कह रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट इज द फॉर्चून ऑफ डिपेंडेंस। एंड Kulti's plea reveals a profound truth that inverts our material understanding. So, in the material world, to be dependent on the mercy of someone else is the utmost sign of misfortune. But in the case of a transcendental relation with the Lord, it is the most fortunate case when we can live completely dependent upon Him. ये एक बहुत फॉर्चून की चीज होती है कि भगवान पर डिपेंडेंट है। इसलिए जब इस्कॉन में दीक्षा के बाद दास और दासी बनते हैं ना, तो ये फॉर्चून है कि हम भगवान के दास हैं। वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्ण, है कि नहीं? एक्चुअली वी आर सर्वेंट, हम सर्वेंट तो हैं ही कहीं ना कहीं दुनिया में, किसी ना किसी के।
कोई नहीं कह सकता हम में से, हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। और स्टोरी सुनिए ना आपने, प्रपात बाबा सुनाते थे स्टोरी ऑफ विलेजर। गांव का व्यक्ति था, उसने एक बार गांव के जमींदार को देखा। देखा सारे गांव वाले जमींदार को नमस्कार कर रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं। तो उसको लगा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, ये जमींदार है। फिर जमींदार के पास गया, बोला मेरे को अपनी सेवा में लगा लो आप। तो ठीक है, जमींदार ने लगा लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उस दिन उस शहर का मजिस्ट्रेट आया। तो जमींदार था, मजिस्ट्रेट को प्रणाम कर रहा था, झुक रहा था उसके आगे। तो गाँव वाले को क्या लगा कि है सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट के साथ चला गया काम करने। वहाँ गया तो फिर देखा कि उस राज्य का राजा उसके आगे प्रणाम कर रहे हैं। राजा की सेवा में चला गया। ऐसे करते करते उसने राजा की तरह रहना शुरू किया। तो राजा से उसने राजा को एक दिन देखा उसने कि वो मंदिर में प्रणाम कर रहा है। किसको, भगवान को। तो उसने पूछा कि अल्टीमेट कौन है दुनिया के अंदर। तो बताया कि अल्टीमेटली कृष्ण इज देयर, इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। Krishna is the root cause of everything in this world. So being dependent on Krishna is the most fortunate stage of life. और इसी को क्या कहते हैं हम, सनात बोलते हैं। सनात मतलब जो कि व्यक्ति भगवान पर निर्भर है, इसको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, हाउ यू हैव टू गो फोर्थ। सो सनात व्यक्ति ऑलवेज प्रोटेक्टेड। हाँ, तो कमिंग टू द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी, देखो पांडव ऐसे नहीं थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बैठे हैं खाली भगवान पे निर्भर है, भगवान आप ही करो। अर्जुन ने कभी नहीं बोला है भगवान। प्रभात कहते हैं टीचिंग द कुंती के बुक के अंदर ही, है ना। प्रभात कहते हैं कि अर्जुन नेवर सेड कृष्णा दैट कृष्णा प्लीज यू फाइट ऑन माय बिहाफ एंड आई विल सिट इजीली ऑन माय चैरियट एंड ड्रिंक गांजा, स्मोक गांजा। प्रभात कहते हैं ऐसा तो नहीं बोला अर्जुन ने कभी, बिकॉज अर्जुन हिमसेल्फ वाज फाइटिंग। ट्रू, अर्जुन हिमसेल्फ वाज फाइटिंग। कई लोग पूछते हैं प्रश्न कि भाई हम जब कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटीज करने जाते हैं तो हमें ड्यूटी से फोकस करना चाहिए कि हमें कृष्ण पे ध्यान लगाना चाहिए, है ना। लास्ट टाइम शायद किसी ने कैंप में ही पूछा था जयपुर में, गौतम बुद्ध ने पूछा था। तो बस सिंपल सी बात है, आप सब कुछ सोचो, अर्जुन जब फाइट कर रहे थे तो अर्जुन वाज फाइटिंग, सो ही वाज फोकसिंग ऑन द फाइट, ही वाज नॉट फोकसिंग ऑन कृष्णा हु वाज ऑन द चैरियट। स्वयं भगवान के सामने है, पर ऐसा नहीं था कि ध्यान लगा रहे थे भगवान। सो इसीलिए एक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ कृष्णा ना इज कनेक्शन विद कृष्णा। ध्यान से समझिएगा, अगेन आई रिपीटेड, एक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ कृष्णा, भगवान का क्या पर्पस है, उस पर्पस के लिए जब हम एक्ट करते हैं ना, वी आर कनेक्टिंग विद कृष्णा। दैट्स व्हाई एनी एक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कैन बी अ कृष्णा कॉन्शियस एक्ट, प्रोवाइडेड द पर्पस फुलफिल्स द पर्पस ऑफ कृष्णा। इसलिए भगवद गीता के प्रीफेस में प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात बोलते हैं कि what Krishna wants from us is that his desire and our desire both should become one। बस ये करना है, we have to make this one। एग्जाम्पल्स पांडव खुद हैं अपने आप में। दे वर नॉट, जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे, दे वर नॉट द आइडल पैरासाइट्स ऑफ द लॉर्ड। दे वर ऑल हाईली क्वालिफाइड बोथ बाय द पर्सनल कैरेक्टर एंड बाय फिजिकल एक्टिविटीज। And that's why the highest achievement of a perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord। इसलिए भगवान ने भी ये बात बोली ना कि व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए अर्जुन, जस्ट डिपेंड ऑन मी एंड फाइट, है ना, युद्धस्व, फाइट। ये प्रिंसिपल अपने को भी क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी सी द पांडवास वर द महात्मास इन द हाउस होल्ड लाइफ, and this state of enlightened dependence is the sign of a Mahatma, the great soul। The entire Pandav family lived as Mahatmas even while managing a kingdom। अभी हम जब नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे, we'll discuss more on the prayers of भीष्म देव। तो उसमें देखेंगे कि भीष्म देव ने जो शिक्षाएं दी थी युधिष्ठिर को बाड़ों की शैया पे, वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेसिस है कोड ऑफ कंडक्ट का इस दुनिया के अंदर। एंड विल रीड एंड स्टडी कि इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स उन्होंने पढ़ाए हैं। और सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स किसके लिए हैं, सभी लोगों के लिए, समाज में एक राजा के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, एक प्रजा के लिए, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ धर्म बताए वहाँ पे। अभी स्टडी इन महाभारत, सब धर्मों को आप देख के जानेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में कितनी डेप्थ है चीज़ों को समझाने की, और एक एक क्वालिटी वाइज समझाया हुआ है कि राजा का क्या क्वालिटीज होते हैं, एक पुरुष के क्या क्वालिटीज होते हैं, एक स्त्री के क्या गुण होने चाहिए, बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, वृद्धों के साथ कैसे होना चाहिए। सच नाइस लर्निंग फील विद।
The later part we'll see it. So that will be there. An example of dependence मैंने already ये दिया था. The dependence is the fish when it is in water, it's in a very happy stage. But when the fish is out, separation of fish from water, then it's a very miserable stage. So similarly, for a devotee, depending on Krishna is the most fortunate stage of life. And unfortunate condition is what? When the dependency is not there. And finally, the Pandava situation is a mirror for our own. It is not only the Pandavas who were put into the condition of enmity, but all of us are always in such a condition. And the best way is market. And the best way of living is to become completely dependent. Completely dependent on the will of the Lord. And thereby overcome all difficulties of material existence. ये है, ये बहुत फाइनल लाइंस हैं. इट्स नॉट सेड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग ऑन द लॉर्ड. डिपेंडेंट हर चीज को लेके भगवान के लिए हो जाए, नो. है कि नहीं? एक बार याद है मेरे को, बेस्ट डे की याद की बात आ रही है. वन डिवोटी वाज देयर. अपना सामान बहुत लापरवाही से रखते थे और कमरे में कहीं फेंका हुआ है, कहीं पे कुछ फेंका हुआ है. उनके सीनियर आए, उन्होंने एक बार बोला कि आप सामान ऐसे क्यों फेंक के हो, बेटर यू शुड कीप इट इन लॉकर, कीप इट प्रोटेक्टेड इन समवेयर ना, अलमीरा. तो बहुत अच्छा उन्होंने आंसर दिया डिवोटी ने. ही सेड कृष्णा विल प्रोटेक्ट ऑल माय बिलोंगिंग्स. आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा. कृष्णा विल protect all my belongings. So what this Indian devotee said was, Krishna is not your watchman, that he is going to take care of all your belongings. So you should be intelligent enough to keep it in the locker. और इस बात का ध्यान हर कोई रखता था पहले. जैसे ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. इवन रूप गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं कि वंस ही जस्ट डिजायर्ड, एक इच्छा आई, सोचिए कि सनातन गोस्वामी को मैंने बहुत समय से कुछ अच्छा पका के नहीं खिलाया, तो आई शुड कुक समथिंग वेरी नाइस. कुछ अच्छा से मेरे को पकाना चाहिए और सनातन गोस्वामी को इनवाइट करके उनको खिलाना चाहिए. इच्छा थी, आप सोचो, प्योर डिवोटीज की इच्छा है कि खाली हमें कुछ अच्छा बना के खिलाना. बाबा जी हैं तो कुछ भी नहीं उनके पास, लिटरली नथिंग. खाते भी क्या हैं? सूखी चपातियाँ खाते हैं. और कहाँ से एक छोटी सी लड़की थी, वो ले करके बहुत सारे सामान लेके आई. दूध, चावल, चीनी, सब्जी, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ ला के दी और बोली, बाबा ये खाओ, मेरे पिताजी ने तुमको देखा यहाँ बैठे हो बहुत समय से, और इसको पकाओ और खाओ. तो भी सरप्राइज लोग सुने कि ये कहाँ से इतना सारा सामान ले आई, जो छोटी बच्ची है. तो बोला चलो कोई नहीं, हो सकता है किसी ने अरेंजमेंट करके दिया होगा. तो उन्होंने पकाना शुरू किया और फिर इनविटेशन भेजा फीस्ट के लिए सनातन गोस्वामी को. सनातन गोस्वामी आए. तो आने के बाद उन्होंने जब फीस्ट देखा तो भी आश्चर्यचकित कि आपको यहाँ पे कैसे इतने सारे सामान मिल गए गाँव के अंदर. तो उन्होंने बताया कैसे एक छोटी बच्ची आई थी, वो देखे गई. और फिर जब उन्होंने खाना शुरू किया, उस प्रसाद की ये दिव्यता थी कि वो भी बहुत सरप्राइज की, ऐसा तो प्रसाद मैंने कभी नहीं खाया. फिर उन्होंने उस बच्ची का डिस्क्रिप्शन पूछा, वो कौन थी, कहाँ से आई थी. तो उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया रूप गोस्वामी ने. फाइनली सनातन गोस्वामी सारा डिस्क्रिप्शन सुना. ही सेड दैट वाज श्रीमती राधा रानी एंड यू शुड नॉट हैव टेकन सर्विस फ्रॉम हर. तो रूप गोस्वामी ने बोला, मैं तो कोई सेवा मांगी भी नहीं थी मैंने. तो बोला कि सेवा आपने मांगी नहीं थी, बस स्टिल आपने क्या किया था, एक इच्छा प्रकट की थी कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो. एंड दैट्स द नेचर ऑफ कृष्णा ऑल्सो. एंड कृष्णा इज एटर्नल कॉन्सोर्ट श्रीमती राधा रानी ऑल्सो, कि वो अपने भक्तों की इच्छा को सदैव पूरा करते हैं. लेकिन फिर भी नहीं चाहते थे वो कि ऐसा कुछ इच्छा हम करें. पॉइंट इज आवर डिपेंडेंसी ऑन द विल ऑफ द लॉर्ड. ये इतना एम्पावरिंग है अपने आप में. आपके जीवन में आप बेस्ट करो, कभी भी तकलीफ हो, समस्या हो, घर में कुछ हो, चीजें कुछ हो, आप यू टेक ऑल द प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके जीवन में हो सकते हैं आप लीजिए. बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके सारे अथक प्रयास के बाद भी जब कोई चीज़ नहीं हो पाती है या वैसी नहीं आती जैसा आप चाहते हो, इट्स द सिंपल रीजन, देयर इज अ विल ऑफ द लॉर्ड. अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक वो है, मैं तो 2-3 मिनट और लूंगा, टाइम इज ऑफ. यहाँ पे वो लाइन खींचना समझ में नहीं आता अपने को कि भगवान की विल कहाँ पे है और मेरी मेहनत कहाँ पे है. ये भक्तों के बहुत बारे प्रश्न होते हैं कि हाउ मच आई शुड स्ट्राइव एंड डू माई हार्ड वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड वेयर इज द विल ऑफ द लॉर्ड. इज द विल ऑफ द लॉर्ड. जैसे एग्जांपल, अभी रिसेंट 2 दिन की, परसों की, कल ही की बात है, वन डिवोटी देयर इन मुंबई. सो समहाउ ही इज अ यूथ, पता नहीं क्या क्या उनको दिक्कत हो गई. ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. और
5 जनवरी को एडमिट हुए। सो लेटर ऑन मतलब 15 दिन, दिस इज लाइक 16 17 नाउ, 17 16 तारीख आ गया, 10 दिन हो गया। सो नाउ ही इज ऑन वेंटिलेटर। और बहुत सारे सिस्टम्स बॉडी के वर्क नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं हो रही। सो नो पॉइंट इज व्हाट पॉइंट इन सेइंग दिस एग्जांपल कि एवरीबॉडी इज ट्राइंग इज बेस्ट। हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, डॉक्टर्स डिवोटीज हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, जो उनके लिए पूजा कराई जा सकती है, जो कुछ कराया जा सकता है वो बाहर हैं डिवोटीज वो करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, वी ऑल नो इट्स द विल ऑफ कृष्ण, डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द लॉर्ड। ये हमें लाइफ में बहुत हेल्प करता है, बहुत एम्पावर करता है, बहुत पुश करता है। कभी हम कमजोर नहीं पड़ते लाइफ के अंदर। एंड दैट्स द वे we can actually be dependent as Mother Kunti is there. And that's finally the anchor of grace. So the true strength, identity, and beauty are not self-generated. इस अपने से नहीं आती है. They are the imprints of the grace, reflections of a divine source. And the highest achievement is, try to mark this point, the highest achievement is to work with valor, पूरी शक्ति से अपना कार्य करिए, live with a purpose, and remain anchored in the fortune of complete dependence on the Supreme. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna. Thank you, everyone. So now, any questions if you have, you can ask. Anything else? Anything? Any question? One, two, three. हाथ रेस करके. Okay. So I think everything is clear today. Okay, दो हाथ आए अभी just. Jagannatha Mohanpur. हरे कृष्णा Yes, प्रभु। Jagannatha. हाँ। Yes, bro. तो जी, मेरा प्रश्न इसी से, तो जैसे मतलब आपने बताया कि भक्त लोग ये मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कि जो है हमारा प्रयास कितना और विल ऑफ लॉर्ड क्या है किसी चीज में ना। जैसे हम लाइफ में भी अपने डेली टू डेली लाइफ की सिचुएशंस में देखते हैं, तो भौतिक जगत में भी हम प्रयास कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं बड़ी सारी। तो ये समझ में नहीं आ पाता कि मतलब एनालाइज किस पे कर पाए। कई कई बार ऐसा भी रहता है कि हमारी तरफ से एफर्ट्स कम हो किसी चीज को करने में, है ना। और या फिर हम्म विल ऑफ लॉर्ड है, भगवान चाहते ही नहीं कि हाँ इस तरीके से चीजें हों, तो उसको कैसे समझा जाए फिर। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. जितना हार्ड वर्क करोगे लाइफ में उतना समझ पाओगे चीज़ को. बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क नहीं समझ में आती चीज़. क्योंकि एक समय जब हार्ड वर्क कंप्लीट किए हो ना, आप एक्चुअली ये बात समझ जाओगे कि आप कहाँ लैक करते हो एक्चुअली में. वेयर डू यू लैक. और जब आप लैक करोगे उस पर वर्क करना शुरू करोगे ना, आप एक चीज रियलाइज करोगे, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग इन लाइफ. में हर चीज नहीं कर सकता जीवन के अंदर. कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली मेरे स्कोप से बहुत बाहर हैं, और वास्तविक बाहर होती हैं, है ना, वास्तविक रूप से बाहर होती हैं. कई सारी चीजें होती हैं. एक भक्त जानता था, वो कीर्तन करते थे बेचारा, बहुत मेहनत किया, उसको एक ट्यून के अलावा कुछ आता ही नहीं था. कहीं भी कीर्तन करने जाए वो एक ही ट्यून गाए. एक बार उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की कि मैं कोई ट्यून सीखूं 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 सीखूं. और उसने किया क्या था, आधे एक घंटे तक वही ट्यून प्रैक्टिस की थी पूरी, जाने से पहले. जैसे ही पहुंचा वहां पे, प्रोग्राम शुरू करते ही भूल गया वो ट्यून. और उसने वही ट्यून गाई जो ट्यून गा सकता है. दिस इज लिटिल ह्यूमरस साइड. बट पॉइंट इज व्हाट कि वेरी डिफिकल्ट. जब तक हार्ड वर्क नहीं किया ना, तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि वो विल कहाँ पे आती है एक्चुअली भगवान की. दैट्स व्हाई कृष्णा एनकरेज हार्ड वर्क इन द थर्ड चैप्टर कर्म योग के अंदर इसको एनकरेज करते हैं. सो वर्क हार्ड, तो मेहनत करें. सो विल रियलाइज कि कहाँ पे हम कर सकते हैं, कहाँ पे कृष्णा का विल है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन प्रणय को. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रणय. प्रभु जी, जैसे आपने जैसे 6 अनर्थ के बारे में जैसे एक क्वेश्चन था कि उसमें ना एक हम्म आते हैं ग्रीड। हम्म प्रभु जी, जब भी पैसा कमाने जाते हैं तो भी मतलब ऐसा लगता है कि बस आए, पैसा आए और कमाए। तो उसमें ना कभी भी वो मतलब जैसे हार्ड वर्क समझते हैं ना हम। जैसे भी हम्म आपने हार्ड वर्क बोला, तो हार्ड वर्क में इतने वो हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि ग्रीड लगता है कि उसको सपोर्ट कर रहा है, कि हम्म एक्चुअली ग्रीड होते हुए हार्डवर्क को सपोर्ट कर रहा होता है। और उसमें फिर चाहे साधना कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे फैमिली रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए,
और बस वही होता है कि बस सुबह उठो, काम करो और वापस आओ और सो जाओ, और वही मतलब रिपीट, यही चलता रहता है। और बाद में लगता है कि हम तो पैसे के लिए कर रहे हैं। तो वो कैसे समझ नहीं आता, वो ग्रीड कैसे उसको एनालाइज करें। अगेन आई विल से हार्ड वर्क को, जब हार्ड वर्क करते हो ना, ऑटोमेटिकली रियलाइज कि एक लिमिट के आगे नहीं कर सकता मैं, दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, है कि नहीं? और अगर आप एक सिंसियर साधक हो गए ना, जस्ट टू मार्क माई पॉइंट, कि व्हेन यू आर वेरी सिंसियर साधक, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि एक्चुअली मैं ज़्यादा कर रहा हूँ जितना मुझे नहीं करना चाहिए। मैं भक्तों के संग को छोड़ करके, अपने बेसिक्स ऑफ लाइफ को छोड़ करके बहुत ज़्यादा इसके पीछे भाग रहा हूँ। सो आई विल से, उस केस में वी कैन वर्क अपॉन फाइंडिंग आउट some ways where we can do some smart work. I'm not saying कि आप उसका कोई गलत वो निकालो, मतलब शॉर्टकट्स निकालने की बात नहीं कर रहा। स्मार्ट वर्क मीन्स इंक्रीजिंग अवर स्किल्स, इंक्रीजिंग अवर रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग अवर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर थे फॉर एग्जाम्पल, वो भी गृहस्थ थे, तो उनका शेड्यूल आप देखोगे, ही वॉज सो एफिशिएंट इन हिज कोर्ट वर्क, कोर्ट ड्यूटीज के अंदर ना, हार्डली कोई जज होते थे उस प्रकार से। सो कहीं ना कहीं हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी इस जीवन को भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? वी आर वेरी एनलाइवेंड फ्रॉम विद इन। जब आप एनलाइवेंड होते हो ना, तो अगर आप कोई भी काम एक 10 यूनिट के फोर्स से कर सकते हो ना, वो आप जब एनलाइवेंड होगे वो 100 यूनिट के फोर्स से कर पाओगे। सो फॉर अस, द सोर्स ऑफ एनलाइवमेंट इज व्हाट? कनेक्टिंग विद डिवोटीज, कनेक्टिंग विद द साधना, कनेक्टिंग विद द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये बेसिक सब होंगे ना, आप बहुत एनलाइवेंड जब रहोगे, आपका दिमाग और तेज चलता है उस चीज़ को करने में। मैं वो एक्सपीरियंस, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ इसको, कि मैनी थिंग्स वी आर एबल टू डू, नॉट वी आर वेरी टैलेंटेड, बट जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं भगवान इंटेलिजेंस देते हैं उसको कैसे करना होता है। ददामि बुद्धि योगम। सो दैट्स वे वी कैन डू स्मार्ट वर्क, एंड विथ लेस टाइम we can achieve more, and we can spend some quality time with sadhana and relations and plus family, many things we can do, बहुत चीजें कर सकते हैं। आई होप माई मैसेज इज क्लियर। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, लेकिन शायद पहले सार्थक प्रभु पूछेंगे, तब बाद में पूछ लेता ओके हूँ। ओके ओके, बोलो सार्थक को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बस भी लाउड करो थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने बात करा कि भगवान की डिपेंडेंसी के ऊपर, तो हम्म, मेन मेन क्वेश्चन था कि भगवान की डिपेंडेंसी है, सब कुछ है, बट अभी जैसे अभी आपने एक भक्त का केस बताया था कि जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, होपफुली हाँ भगवान मर्सी करे उनपे। बट इसी इसी की तरह प्रभु जी मैं पूछना चाहता कि लेट्स से कि हमने सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है, बट मेन चीज क्या होता है, जो प्रो जी पेन हो रहा होता है वो इसके लिए नहीं हो रहा होता कि वो हमने सारे प्रयास कर लिए, बट वो एक अटैचमेंट जो है उस व्यक्ति से, वो ठीक है, हमने सारे शास्त्र समझ लिए, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि भगवान के विल है, डिपेंडेंसी है, बट वो जो अटैचमेंट है, बिकॉज वो जो पेन हो रहा है उसको कैसे, मतलब वो कैसे पाथ को हम उस ट्रेवल करें, मेन वो वाली चीज होती है क्योंकि पेन बहुत है। टॉलरेट। जी जी। तो हाउ हाउ वी वो टॉलरेट दैट पेन, बिकॉज हम देख रहे हैं अगर वो आदमी हमारे सामने जा रहा है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, ठीक है कि हम समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सारी चीजें ठीक है, बट वो आदमी हमारे लिए स्टिल जरूरी है, मे बी हमारे मदर, मे बी हमारे फादर। सो वो वाली एक वो पेन कैसे टॉलरेट करें? गीता, गीता पढ़ो, बिना गीता पढ़े नहीं होगा। मैं कुछ